So let us revise power set. So it is a set of all possible subsets. It is a set of all possible subsets of any given set. Okay, for example, if I take set A containing elements 1 and 2, so what all possible subsets you can form for this set? And how do we denote power sets? We denote power sets by P of Capital A. What all elements will come under this power set? So इसके subsets बताओ क्या क्या हो सकते हैं? empty set. दो, yes, one is empty set. Empty set is a subset of every set. Then एक और होता है ना by Singleton set default. of one What and is two, that? and every set is a subset of itself. Yes, every set is a subset of itself. So हम क्या लिखेंगे? Set A लिख देंगे. Set A लिखो या फिर set containing 1, 2 भी लिख सकते हो. Okay, then और क्या possible subsets form कर सकते हो ये set A का? Singleton set containing 1, then singleton set containing 2. Is there any other possibility? Yes, correct. Any other possibility than this? No, ma'am. तो सारी possibility हमने लिख लिया. Okay, so what I observed from here that set in set A there was how many elements? 2 elements. Okay, and in power set how many elements are there? 4. 4. So what is the formula? Can you tell me the relation between A and its power set? What is the 2 raised relation to if set A is having? Yeah, correct. If set A is having n elements, then its power set will have 2 raised to n elements. So ये concept हमें use करना है in Scilab practical. So let us get back to the practical now. So let us read the question. So set A, let us define set A. Set A में क्या क्या elements है? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then where 1 represents what? Onion, 2 represents tomato, 3 represents carrot, 4 is cabbage, and 5 is cucumber. Okay, write a Scilab code to find total numbers of eatables available. What is this question, students? क्या बोल रहे हैं find out करने के लिए? Write a Scilab code to find total number of eatables available. What do you understood from the question? What do you understood from the question, students? I think I shall share my screen only so that, yeah. What do you understood from the question? Who can explain me this? Total numbers of eatables available. कितने eatables दिख रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पे? कितने eatables लिखे हुए हैं स्क्रीन पे? सबका प्लस करने का मैम. प्लस क्यों करना है? eatable समझ में आता है? eatable खा सकते हो आप. Yes, बस इतना सिंपल तो आंसर है. So अब वो जो onion, tomato, carrot, cabbage, cucumber, instead of writing those things, what they have taken, they have represented those vegetables by 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Got it? Yes, ma'am. Okay. Yes, So हाँ, तो we are not going to write onion, tomato, carrot, cabbage, and cucumber. will be just writing 1, 2, 3, 4, 5 respectively. That is being used for vegetables. Okay. So they are asking a write a code जो कैलकुलेट कर ले कि भाई कितने eatables है, मतलब set A के अंदर कितने elements है वो काउंट कर ले, तो वो कोड लिखना है. So we'll see that what is that command which we have to give to count how many elements are there in the set. The question number 2 is what the number of different salads that can be prepared using the given eatables. अब बताओ ये 5 vegetables है. 2 raised to 5. 2 raised to 5. That means 32 salads you can prepare. You sure, Raj? Okay, let me explain the question first, and then I expect that other than Raj and Pritesh, other kids will also respond. Okay, तो क्वेश्चन क्या है कि कितने आप डिफरेंट सैलेड्स बना सकते हो यूजिंग दीस 5 वेजिटेबल्स व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन. अनियन, टमाटो, कैरेट, कैबेज, क्यूकम्बर यूज करके आप कितने डिफरेंट सैलेड्स यू ऑल कैन प्रिपेयर? क्या लगता है आपको? सैलेड्स बनाना अभी जैसे मुझे से 21 और 31. 25. Why, Nitesh? Why you think so कि 25 salads you can prepare? क्योंकि मैम 5 वो है ना सब्जी. अरे तो 5 सब्जी हुए तो
So 25 salads कैसे बना सकते हो? मैम 25 नहीं बना सकते, सबका मिला एक ही कितने- बनेगा मैम। एक ही बनाना है? अच्छा, वही मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। अभी जैसे मैं सैलेड में सिर्फ टोमेटो या फिर कैरेट, सिर्फ क्यूकम्बर पसंद करती हूँ। लाइक अगर प्रीतेश होगा, प्रीतेश को सिर्फ सैलेड में टोमेटो चाहिए, या फिर कोई और होगा जिसको सिर्फ अनियन चाहिए रहता है। ओके, सो एक आप डिफरेंट सैलेड कर सकता है यूजिंग ओनली वन वेजीज, राइट? नो, ये एक सैलेड हो गया, ठीक है। ये दूसरा सैलेड हो गया जिसमें सिर्फ मैंने टोमेटो यूज किया है एंड नो अदर वेजिटेबल्स। ओके, आपको क्या बोला कि सारी पॉसिबिलिटी, सारे पॉसिबल सैलेड्स जो आप बना सकते हो वो लिखने हैं, ठीक है। या फिर मुझे, जैसे कि मुझे सिर्फ क्यूकम्बर पसंद है, ठीक है, तो सिर्फ क्यूकम्बर को मैं लेकर क्या बनाऊंगी, सैलेड है ना, हो सकता है कि नहीं। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैबेज हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, कैरेट। सो ये 5 पॉसिबिलिटी होगी यूजिंग वन वेजिटेबल्स। फिर क्या हो सकती है कि सपोज किसी को टोमेटो और क्यूकम्बर दोनों पसंद है, तो टोमेटो और क्यूकम्बर यूज करके भी हम क्या लिख सकते हैं, वेज सैलेड्स बना सकते हैं। या फिर किसी को टोमेटो एंड कैरेट पसंद है ना। सो ये हम क्या फॉर्म करें, बेसिकली व्हाट आर वी फॉर्मिंग, वी आर फॉर्मिंग दी सबसेट्स। वी आर फॉर्मिंग, पहले क्या लिया, सब एक एक सेट ले लिया, फिर दो दो ले रहे हैं, फिर हम क्या ले लेंगे, तीन तीन वेजेस का सबसेट लेंगे, फिर फोर फोर का, एंड लास्ट में क्या हो सकता है, फाइव फाइव का हो जाएगा। तो उसमें कौन सा, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। यस शरद, शरद 36 कैसे आ गया आंसर, 2 raised to 5 is 32, दैट्स करेक्ट। 36 नहीं होता है 2 raised to 5। शरद, यू गेटिंग इट? शरद, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम 32 लिखने का अच्छा, ओके ओके। सो जितना मैं सुन पाई हूँ, तुम कहना चाहते हो कि 32 लिखना था, 36 गलती से हो गया। You're not audible. I think you need to get in network area, Sharad. Okay, so what I was explaining, so what are we to, yeah, okay. So हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 5, they are nothing but they are vegetables, okay, and हमें ये vegetables से क्या करना है, salads बना। तो basically we are forming the subsets of A, okay। हमें क्या बोला है कि how many different salads you can prepare, तो basically we are forming subsets of A, but कौन सा subset इसमें count नहीं होगा। सारे वी नो दैट कि अगर सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 5, तो पावर सेट में कितने कितने सबसेट्स आप बना सकते हो, 5 कितने बना सकते हो, 2 raised to 5, दैट इज 32। बट 32 में भी एक सेट आता है, वो कौन सा सेट होगा जो आप काउंट नहीं करोगे, Empty set. वो कौन सा सबसेट होगा जो काउंट, यस, आई वाज ट्राइंग टू राइट 31, no salads can be formed leaving the empty, yes, correct, absolutely right Sharad, that हमें पता है कि हम 2 raised to 5 दैट इज 32 सबसेट्स बना सकते हैं, बट उसमें एम्प्टी सेट भी काउंट होता है। बट हम सैलेड्स विदाउट यूजिंग एनी वेजिटेबल्स वी कैन नॉट मेक एनी सैलेड्स, ओके। आपके पास कोई वेजीज नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैंने सैलेड्स बना लिया है, हवा में सैलेड्स बनाया है क्या आपने, सो ये एम्प्टी सेट हम काउंट नहीं करेंगे। सो 32 पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, बट उसमें से हम एक सबट्रैक्ट करेंगे, वो एक किसके लिए, एम्प्टी सेट के लिए, तो काउंट कितना आता है, 31 आता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया आप लोगों को? Yes, यस, जैसे कि अब मैं आपको 5 फ्लावर्स, अभी वेजिटेबल्स की जगह मैं आपको 5 फ्लावर्स दे दूं, मैं आपको बोलूं कि बुके बनाओ, सो हाउ मेनी बुकेज यू कैन मेक, यू नो। आपको ये बुके बना सकते हैं एक एक फ्लावर लेकर, रोज लेकर, यू नो, लाइक बहुत सारे ऑर्किड लेकर, तो या फिर कोई 2-2 फ्लावर का मिक्सचर ले सकता है, या फिर 3-3 फ्लावर का, बट विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द फ्लावर यू कैन नॉट मेक बुके, राइट। सो वो एम्प्टी सेट आप काउंट नहीं करोगे, सो यू नो, सिर्फ वेजिटेबल्स की जगह आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कि आपको बेसिकली क्या फॉर्म करना है कि आप कितने सैलेड्स बना सकते हो या फिर कितने बुके बना सकते हो यूजिंग द गिवन elements, okay, whether it is vegetables, whether it is flour or something else, okay. Now we shall see the coding. So it's very easy, students. We'll see now coding part. So first of all, you need to define the set in the Scilab, okay. So code देख लेते हैं quickly. I hope I have shared my screen, no? Yes, दिख ma'am. रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। So just see the code.
ओके तो हमने क्या, एज आई टोल्ड यू कि पहले आपको एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा। सेट ए क्या हो गया हमारा, सेट कैसे डिफाइन करोगे आप, तो आप साइलैब में लिख रहे हो, साइलैब में आप कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट। आप कोडिंग लिख रहे हो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो, सो वी डू नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट, वी यूज, जैसे हम एरे डिफाइन करते हैं ना, एरे कैसे डिफाइन करते हैं, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हो ना, एरे, एरे का टॉपिक स्टार्ट हुआ या फिर बाकी है, एरे स्टार्ट हुआ है, ठीक है नहीं कोई मैम। बात नहीं, नो तो मैम, कोई नहीं बात चालू। नहीं। तो अभी फॉर टाइमिंग और अंडरस्टैंड, यू नो, सेट ए ले लिया, सेट ए को अभी मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ए ले लिया। अभी जरूरी नहीं है कि मैं कैपिटल ए लिखूं, इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम सेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे लिखते हैं, कैप्स में लिखते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड ओवर हियर कैपिटल ए, अदरवाइज दे आर जस्ट अ वेरिएबल, you can use other variables also। ऐसा नहीं कि मैम ने कैपिटल ए यूज किया मैं भी कैपिटल ए यूज करूंगा। Okay, you can choose variables of your own। Okay, so here I have taken capital A and I have stored an array in that 1 2 3 4 5। Okay, since I'm given 5 e tables। Okay, then हमें बोला था, पहला क्वेश्चन क्या था कि टोटल नंबर्स ऑफ ई टेबल्स, तो ये सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करे। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5, ये हमें पता है, बट साइलैब को कैसे पता चलेगा कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो वो कैसे काउंट करने का काम, काउंट करके हमें बताना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए। सो उसके लिए क्या कमांड दोगे आप, लेंथ, क्या कमांड देना होता है स्टूडेंट्स, LENGTH। ओके, सो लेंथ कमांड दोगे टू काउंट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट ए, और जो आपने एरे ऊपर डिफाइन किया हुआ है, जो आपने एरे ऊपर डिफाइन किया है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करने का काम कौन करेगा, लेंथ कमांड। ये लेंथ इज द कीवर्ड इन साइलैब। देख लो कैसे लिखना है, स्मॉल केस में सारे लेटर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। सो लेंथ, एंड किसका आपको लेंथ निकालना है, सेट ए का, तो वो ब्रैकेट में लिख दो। एंड ये वैल्यू को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर दो, इधर मैंने क्या वेरिएबल लिया, पी। अभी कैलकुलेट तो हो गया, बट आपको डिस्प्ले होगा क्या, अनलेस एंड अंटिल यू गिव कमांड डिस्प। सो नेक्स्ट टाइम आपको क्या दोगे कमांड डिस्प, और इसके वेरिएबल को, वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग बी। एंड इधर हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द आंसर दिस, मैम ये पी किसका वैल्यू, यस मैम वो डिस्क बोलो पी में बोलो। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। See, you can use single, you can use double। देखो सिंगल यूज करो, अगर आपका आउटपुट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो समझना कि डबल कोड यूज करना। ओके, व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज ये वर्जन टू वर्जन वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी yesterday I downloaded 6.6.1, तो it is accepting, and in some other version it will not accept। So if you are getting after putting single code, even if you getting the output, then well and good, if you are not getting, then you have to change। Okay, and what is this P stands for, what is this P calculating, P is calculating the total number of Length. tables available। Okay, next, now what is this formula 2 raised to P minus 1, what is this, why have I written this 2 raised to P minus 1। अभी देखो, अभी सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5, ये 5 किस में स्टोर्ड है, P में स्टोर्ड है। देन हमें बोला था कि कितने सैलेड्स आप बना सकते हो, तो यू आर सेट कि 2 raised to 5 minus 1, राइट टू स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर सेट, Yes 2 raised मैम। to 5 minus 1। So 2 raised to 5 minus 1, तो 5 किसमें स्टोर्ड है, तो P में, तो P हमने इधर लिखा हुआ है। Why am I writing P and why I'm not writing 5? Can anyone tell me? What if I change the values over here? No, P, A देखो, set A देखो, अगर मैं 5 की जगह 6 लिख दूं, है ना, जैसे जैसे मैं अगर अपना इनपुट वैल्यू चेंज करती जाऊं, तो वैसे ही क्या होगा, ये भी रन होगा, P में भी क्या स्टोर हो जाएगा, P में भी स्टोर हो जाएगा 6। Then कितने कितने सैलेड्स बना सकते हो, 2 raised to 6 minus 1। सो इसीलिए वी डू नॉट पुट स्पेसिफिक वैल्यू, वी राइट इन जनरल, सो दैट कि अगर आपने इनपुट चेंज किया तो आपका अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको आउटपुट भी मिलेगा। यू गेटिंग इट, Yes मैम। Yes मैम। ओके। सो देन ये 2 raised to P minus 1, आई होप दैट व्हाई इट हैज कम। देन इसको मैंने स्टोर किसमें किया, एंड में, एंड देन इसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्प्ले करें। व्हाट इज दिस, एंड कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिफरेंट सैलेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द गिवन ईटेबल्स। ओके, लेट अस एग्जीक्यूट इट ऑन साइलैब। ओके, क्या बताया था हम, किधर लिखते हैं कोड, वेयर डू वी राइट डाउन द कोड, we write down the code on SciNote, no, well, I forgot it, suppose ये मेरा, I'll just type CLC, and for time being I'm CLC, I'm writing at the end also for time being। Okay, this is my
कंसोल विंडो साइलैब पे आप जब क्लिक करोगे, दिस इज 5.4.1 आई हैव डाउनलोडेड, 6.1.1 आई वाज गेटिंग सम प्रॉब्लम, सो दैट इज व्हाई आई हैव डाउनलोडेड साइलैब 5.4.1. ओके, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम में, कोई सिस्टम सपोर्ट करेगा, नहीं सिस्टम सपोर्ट करेगा, सो टोटली डिपेंड्स ऑन दी दिस थिंग. ओके, सो दिस इज माय साइलैब कंसोल विंडो. नाउ हम कोड किधर लिखते हैं स्टूडेंट्स? डू वी राइट ऑन कंसोल विंडो और something else to be open? Something else to do. Yes, what is that thing? What is that something which I have to open? Skynote. Skynote. Okay, कैसे open करेंगे हम? Where will I go? Where do I go? Yes, file option के नीचे top left corner पे file का option है, उसके नीचे एक pencil लगता है. अगर if you will keep cursor on that, you will get to see that there is launch Skynote option. So उस पे एक ही बार click करने का and it gets open. Okay. Even if you don't see on your screen, तो थोड़ा नीचे देख लेने का, टास्क बार पे आपको दिखेगा कि वो ओपन हो चुका है. सो ये 2 बार ओपन हो गया, तो हम एक बार क्लोज कर देंगे क्योंकि मेरा साइलैब भी क्लोज हो गया है. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ओपन माय साइलैब. Okay, so this is my Skynote. Okay, so this is what I have copy pasted over here. Is it visible? Yes, ma'am. ये Yes, जो ma'am. ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर रीड करेगा क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, so it is just a comment line which is for us, not for software. Okay, so A हमने लिखा, फिर इसको length command. The length command क्या करता है? What is the use of length command? What is the use of length command? Value लेगा वहाँ से. What is the use of length command? Value of A. Sorry, एक स्टोर कर रहा है मैम. A का वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये बताया मैंने. लेंथ कमांड किस लिए यूज कर रहे, कौन बताएगा? Who will answer? Why are we using length command? लेंथ कमांड का क्या यूज बताया मैंने? कि मैम हम लोग So that एक और एक जनरल आंसर रहे, अगर वैल्यू चेंज हो तो उस हिसाब से हर बार प्रोग्राम में चेंज करना. हाँ, वो दैट्स ओके राज, बट आई एम आस्किंग कि लेंथ कमांड क्या काम कर रहा है इधर? लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ इट? A से वैल्यू ले रहे हो. क्या काम दिया गया? A इसका से कुछ value रोल लेने होगा ना, कुछ तो काम कर रहा हो. ए का वैल्यू ले रहे हैं. हम्म. ओके, और कौन बता सकता है? ए का लेंथ कमांड, अपने लेंथ कमांड साइलैब को दिया, वो साइलैब क्या लेगा इसको कि लेंथ कमांड दिया मतलब उसको क्या करना है, काम क्या करना है इसको साइलैब को? यस स्टूडेंट्स, so length command का entries. Yes Mayur, you're little closer to that. Okay, so length command बच्चों, अभी हमें काउंट क्या करना था कि कितने टेबल्स अवेलेबल हैं. हमें पता था कि कितने टेबल्स अवेलेबल है. कितने टेबल्स थे? 5. 5 ना, 5 टेबल्स थे हमारे पास, बट वो हमने काउंट किया ना. अब साइलैब को अब कैसे बताओगे कि 5 टेबल्स हैं? तो उन 5 टेबल्स को हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 है ना, उसको हमने एरे में स्टोर किया. लाइक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन किया उसे, इसमें क्या वेरिएबल ए में. तो इस ए के अंदर कितने अंदर 5 एलिमेंट है, वो काउंट करने का काम कौन करता है? लेंथ कमांड. सो यू हैव टू गिव कमांड लेंथ. सो लेंथ इससे साइलैब को समझेगा कि उसको काउंट करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए. ए का लेंथ कितना है, कितने एलिमेंट्स है, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5. तो विल गेट टू नो कि लेंथ कितने एलिमेंट है, 5 है. सो ये काम करता है लेंथ. ओके, सो टू काउंट उसकी एंट्रीज क्या, तो लेंथ ऑफ ए मतलब नहीं याद रहता तो ये तो याद रखो ए का मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर. ओके, दैट इज बीन स्टोर्ड इन पी. नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्प्ले करेंगे. फिर व्हाट इज दिस पी स्टैंड्स फॉर? टोटल नंबर ऑफ पी टेबल्स अवेलेबल. वो डिस्प्ले हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. द सेकंड क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी डिफरेंट सैलड्स यू कैन प्रिपेयर.
तो 5 ई टेबल्स है, तो बेसिकली इट इज ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 5, सो दैट इज 2 to 5, बट उसमें एम्प्टी सेट हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज नो सैलेड्स कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग एनी वेजिटेबल्स, सो दैट इज व्हाई -1 वी हैव डन। -1 क्यों आया फॉर्मूले में, समझा ना? फिर हम क्या करेंगे इसको, हाँ इसको डिस्प्ले कर देंगे, वैल्यू किसमें स्टोर किया, एन में, फिर हम इसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, अनलेस एंड अंटिल यू गिव कमांड डिस्प यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आउटपुट। ओके, तो आपको ये कमांड देना ही पड़ेगा टू गेट द आउटपुट। फिर ये कोड हमने टाइप कर लिया, पावर सेट का क्वेश्चन हो गया। देन हम क्या करेंगे इसे, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो हम किधर जाते हैं, सेकंड प्ले बटन पे जाएंगे, विल क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट एंड you get the output on the console window. So can you see the total number of e-tables available is 5 and the number of salads can be prepared using given e-tables are what, 31. Obviously यही 31 आपने आंसर किया था, right? Yes, Understood ma'am. to all of you? Yes, ma'am. Very good. So ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। Now coming to the, तो ये हमारा पावर सेट इज डन। Okay, any query in this? ये कोड समझने में, क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. अभी देखो इधर लिखा भी है रिमार्क में कि क्या है इसका मतलब, नो सैलेड्स कैन बी मेड विदाउट एटलीस्ट वन ऑफ द ईटेबल्स, हेंस नल सेट इजंट विल नॉट बी काउंटेड। ओके, नाउ ये मैथमेटिकल इंडक्शन, तो बेसिकली इट टेल्स यू दैट कि फॉर लूप जो रहता है, अभी फॉर लूप का आपने सिंटेक्स पढ़ा है ना आईपी में, Yes, ma'am. है ना? फॉर लूप में कैसे रहता है, फॉर लिखते हो, देन एक वेरिएबल लेते हो जिसको एक वैल्यू असाइन करते हो, फिर इंक्रीमेंट देते हो, फिर टर्मिनेशन कंडीशन देते हो। बट इधर देखो क्या है, इधर हम फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, सो इट इज जस्ट दैट राइट अ साइलैब कोड टू प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर दिस। ओके, सो नथिंग यू हैव टू डू, ये आपको क्या दिया हुआ है, सपोज ये हम डिनोट करते हैं, आई विल जस्ट टेक दिस क्वेश्चन ऑन वन नोट, तो कैसे वन नोट पे एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। Visible? Yes, ma'am. Or shall I increase the font size? No, ma'am. Visible. Okay, ठीक है। हाँ, okay. So what is the question? So write a Scilab code to prove mathematical induction. Just understand this practical is basically this question is basically made for to understand ki how for loop is working. Okay. So, yeah. So what is this given to us? We are given this some function, I would say, that is 3 raised to n with 3 raised to n minus 2 raised to n. ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। Suppose I'm denoting that by p of n. डिनोट कर दिया, जैसे हम f of x लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से हम f की जगह पे क्या यूज करें, p, एंड x की जगह पे क्या यूज करें, n. सो दैट्स इट, है ना? फंक्शन हमने पढ़ा है ब्रिज कोर्स जब हम कर रहे थे। सो हमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट दिस फॉर 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करो और n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करो। ठीक है, वैल्यू क्या आता है। सो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करोगे, इधर n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो व्हाट आई विल गेट 3 raised to 1 minus 2 raised to 1. 3 raised to 1 is 3, 2 raised to 1 is 2, so I'll get answer as 1. So वही मैंने आप can you all see the coding का first line, u of 1 equals to 1. तो I know that कि अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूंगी तो I will get the answer as 1. अभी n का वैल्यू 2 पुट करो इधर, क्या मिलेगा आपको आंसर? 4. Yes, 4. 3 raised to 2 minus 2 raised to 2 कितना था, 9 minus 4 that is 5. No, 5 आएगा ना आंसर, 4 कैसे आएगा? Yes. ओके, तो आप देख सकते हो कि इधर एक और वेरिएबल डिफाइन किया दैट इज u2 is equals to 5. ओके, देन p is equals to, ये इसको हम बाद में देखते हैं इसका क्या रोल है। देन देखो इधर क्या हो रहा है, फिर मैंने अभी ये एक एक वैल्यू हम पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये साइलैब को थोड़ा काम पे लगाते हैं ना कि वो ऑटोमेटिकली क्या लेना चाहिए, आई का वैल्यू 1 लेना, मतलब n का वैल्यू 1 लेना चाहिए, देन फिर n का वैल्यू 2 लेना चाहिए, एंड वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए, राइट? नो, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, फॉर लूप की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे हम, ये फर्स्ट लाइन समझा आपको, u1 equals to 1, u2 equals to 5 कैसा आया? ठीक है, अभी हाँ। ये हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करने पे 5 आएगा। नाउ अब ये साइलैब कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, फॉर लूप का। किसकी हेल्प लेंगे, फॉर। तो इसका इंडेक्स क्या रहता है, फॉर लूप लो, फॉर मतलब जस्ट राइट फॉर, देन डिफाइन वन वेरिएबल, सपोज इधर मैंने डिफाइन किया, इधर आप n भी ले सकते थे, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको i लेना है, यू कैन टेक n आल्सो। सपोज आई एम टेकिंग n का वैल्यू फिर इक्वल्स टू लिखो, n के कितने वैल्यूज के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ओनली 2 वैल्यूज, तो
एक 1 के लिए कैलकुलेट होना चाहिए, देन 2 के लिए कैलकुलेट, तो आई विल राइट 1:2. सपोज मुझे ये इसका वैल्यू ना 1 से लेकर 10 तक के लिए कैलकुलेट करना है, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग 1 कोलन फिर 10 इधर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा. समझ में आया? तो पहले n का वैल्यू लेगा 1, फिर आपने जो भी नेक्स्ट लाइन पे बॉडी में लिखा होगा वो कैलकुलेट करेगा, देन डिस्प्ले करेगा, देन फिर क्या करेगा, बॉडी के बाहर नहीं आएगा क्योंकि फॉर लूप एंड फिर एंड. ऑब्वियसली आप कोई भी लूप स्टार्ट करते तो उसका एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है ना, जस्ट आपको ऐसा रन होते ही रहेगा. सो आप कोई भी अगर लूप लेते हो, वेदर इट इज व्हाइल लूप, इफ लूप, फॉर लूप, तो जो भी आप लूप लोगे उसको एंड करना पड़ेगा. सो अगर हमने फॉर लूप लिया है तो उसका एंड इधर हम इन आईपी वी यूज कर्ली ब्रैकेट, नो, इन आईपी वी यूज कर्ली ब्रैकेट, बट इधर कर्ली ब्रैकेट हम यूज नहीं करते, वी जस्ट राइट फर्स्ट लाइन में फॉर, एंड उसको एंड करने के लिए वी राइट ई एंड डी. आई होप यू आर गेटिंग इट, गेटिंग द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. सो फॉर डिफाइन किया, देन हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या किया, असाइन किया कि वैल्यू कहाँ से लेना है, 1 से लेना है, एंड कहाँ तक जाएगा ये वैल्यू, 10 तक जाएगा. ओके, देन फिर हमें क्या इधर इसका ये जो वैल्यू किधर पुट करना है. सो अभी नेक्स्ट लाइन में कमांड दे दो 3n - 2n. तो पहले इनका वैल्यू लेगा 1, वो इधर आएगा, फिर इनका वैल्यू 1 पुट करेगा, स्टोर करेगा किसमें, p(1) में, और नेक्स्ट टाइम हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है, एंड देन जब तक ये सारे वैल्यूज के लिए रन नहीं होता तब तक ये कैलकुलेट होके आपको वैल्यू डिस्प्ले करते ही रहेगा. एंड देन फिर आप एंड कब होगा, जब एंड का लास्ट वैल्यू क्या होगा 10, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा. तो भाई ये कोड हमने इधर लिखा हुआ है. डिड यू गेट दिस? Yes, ma'am. ओके, नाउ विल सी दी. तो देखो इधर हमने कोड में लिखने के टाइम पे क्या लिखा, एन लिखा, इधर हम क्या ले रहे, आई ले रहे. आई होप ये आई और एन में कंफ्यूजन नहीं है. यू कैन टेक एनी ऑफ दी लेटर्स, ओके, ऑफ योर ओन चॉइस. मैंने इधर एन पर्पसली कोड में लिखा बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था उस पे एन यूज किया हुआ है, दैट इज व्हाई. ओके, नाउ वी शैल सी द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट. एंड ये लास्ट की 2 लाइन में बस ये बता रहा है कि p(1) का वैल्यू इज सेम एज u(1), whatever you have written in double quotes, the same will be get displayed on the console window. So there's nothing to explain. So I'll just, can you see the code now? Just erase it. Yes, ma'am. तो फर्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं CLC. स्टार्टिंग में CLC लिखने का क्या मीनिंग रहता है? What is the meaning of writing CLC at the start? उसके पहले का जो भी एरर रहेगा वो हट जाएगा. ये या उसके पहले का जो भी रहेगा, आउटपुट रहे या फिर एरर रहे, सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. दैट्स द ओनली रीजन. ओके, राइट, यस बोलो. PMT क्यों रखे? बोल. हाँ, PMT क्यों रखते, देखते अभी. वो ऐसे कभी कोई चीज है ना ऐसे परफॉर्म करके समझनी चाहिए ना कि why have I written that and what if I don't write that, then what will happen. So I hope this is clear कि U1 क्यों डिफाइन किया, because I know कि अगर मैंने 1 पुट किया n की जगह पे तो I'll get answer as 1, 2 पुट किया तो I'll get answer as 5. देन मैंने फॉर लूप लिया बिकॉज ये अब ये साइलैब में कैसे कैलकुलेट होगा, तो फॉर लूप की मदद से लेंगे. कोई ये लूप है तो उसका एंड होना आ जाएगा. अब टाइप भी करोगे ना, जैसे मैंने अभी देखो फॉर लूप टाइप किया तो देखो एंड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है. सो ऑब्वियसली आप कोई भी लूप स्टार्ट करोगे ना तो उसका एंड ऑटोमेटिकली आ जाता है. जैसे अभी मैंने इफ लिखा, सो उसका भी एंड करना आपको जरूरी है. सब कोई भी लूप स्टार्ट करो बेसिकली उसको एंड करना जरूरी है. देन आई टुक वन वेरिएबल आई जिसको वैल्यू असाइन किया 1 से लेकर 2 तक, बिकॉज मुझे 1 = 1, i = 1 एंड i = 2 के लिए कैलकुलेट करना है. किधर पुट करना है, इधर पुट करना है, ये इक्वेशन में पुट करना है मुझे. एंड देन इसको स्टोर किसमें किया, p(5) में, नेक्स्ट लाइन में इसको डिस्प्ले कर देंगे. एंड देन एंड बिकॉज वी हैव टेकन फॉर लूप. लास्ट लाइन में, लास्ट 2 लाइंस में वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग दैट कि p(1) का वैल्यू इज सेम एज u(1) and p(2) का वैल्यू सेम एज v(2). लेट अस सी दैट whether I'm getting it or not. So execute it and we'll get the output in console window. Can you see? ये फॉर लूप का आंसर है 1 and 5. ये 1 and 5 कैसे आया? ये इसका वैल्यू डिस्प्ले हुआ है क्या? इसका वैल्यू डिस्प्ले हुआ है नहीं, बिकॉज ये आपने सिर्फ डिफाइन करके वैल्यू स्टोर किया है, अपने डिस्प कमांड नहीं दिया है सो दैट कि वो वैल्यू डिस्प्ले हो. समझ में आया आप लोगों को? अपने डिस्प्ले कमांड नहीं दिया है कि इसका तो बेसिकली ये इसका वैल्यू तो नहीं, आपने डिस्प्ले कमांड किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग. एंड लास्ट 2 लाइंस में आपने जो भी लिखा था, अब देखो पहला वैल्यू क्या आया 1. हमें पता है कि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, और 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5. वही आया कि नहीं? तो therefore p(1) का वैल्यू इज सेम एज u(1) and p(2) का वैल्यू सेम एज u(2). Hence this is holding for all n belonging to n.
So this is just for an explanation of for loop. Now अभी ये आप पूछ रहे थे, तो what if I remove this? Will I get the output now? Let us see that. Oh, still I'm getting the output. Then why it is that? So basically students, you know what happens, you know, अभी तो ये वर्जन में ले रहा है, बट कभी कभी ना आपको ये एरर आता है, you know, ये आपको लेने नहीं देता है वैल्यू, तो इसीलिए that is why we write that thing. Okay, I hope this is clear. So that की p क्या ले सके, वैल्यूज ले सके, इधर आप i का वैल्यू 1 डाल सको, 2 डाल सको. So that is why we write this empty bracket. Okay, I hope this is clear. अभी जैसे i equals to 3, अभी हमने लास्ट लेक्चर में, अभी सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या लिया था, एरे लिया था, राइट? हमने क्या लिया था, एरे लिया था. एरे हमने कैसे डिफाइन किया था, ऐसे डिफाइन किया था ना, 1 2 3 4. ओके, अभी मैं सिंपली इधर ये ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये इट इज ऑल्सो एन एरे जिसका वैल्यू कैसे क्या वो बाद में कैलकुलेट हो रहा है. तो जैसे p ऑफ i कैलकुलेट हो रहा है, जैसे 1 आया तो मतलब ये 1 पुट करने पे आया ना, तो पहला वैल्यू क्या हो गया इसका, 1 हो गया. देन दूसरा वैल्यू क्या हो गया इसका, 2 हो गया. p ऑफ 2 कितना आ गया, 5. तो ये हो गया 5. सो बेसिकली इट इज ऑल्सो एन एरे जिसका वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, I hope this is clear. So with this, we are done with our mathematical induction practical also. Any doubt in this? Hello? Ma'am, See, if No, you have ma'am. not understood, you can ask me. Okay, I'll explain. एंड के बाद वाला वापस बता दो ना, डिस्प्ले वाला, दो डिस्प्ले वाला, दो ये वाला कमांड डिस्प्ले. तो अभी देखो p of 1 का वैल्यू हमें क्या आया, 1 हमने किस में स्टोर करके रखा था, u of 1 में ना. Can you see this? So वही हम लिख रहे हैं कि p of 1 का वैल्यू इज सेम एज u of 1 एंड p of 2 का वैल्यू इज सेम एज u of 2. वही हम डिस्प्ले कर रहे हैं विद इन डबल कोट्स. मैम So P of hence, 1 और वैसे 2 कहाँ से है? ये देखो ना, इधर हमने कैलकुलेट किया ना, इधर देखो, इधर एग्जीक्यूशन. ओके, मैं आपको एग्जीक्यूशन पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जीक्यूट होगा कैसे. वो जो लाइन लिखते हैं ना, वो जो लाइन लिखा है हमने, मैं आपको एग्जीक्यूशन समझा देती हूँ. एग्जीक्यूशन क्या है इसका, 1:2 देन p ऑफ i इज इक्वल टू 3 रेज टू i माइनस 2 रेज टू i. सॉरी ऐसा नहीं है ना कोड में, क्या है, 3 रेज टू i माइनस 2 रेज टू i, एंड देन इसको डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले p ऑफ i. ठीक है, देन एंड हो रहा है. ठीक है, तो मैं आपको एग्जीक्यूशन समझाती हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है. ठीक है, तो ये साइलैब सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कैसे करता है. तो पहले क्या आ जाएगा, फॉर लूप लिया है. ठीक है, तो पहले फॉर लूप आया तो साइलैब क्या लेगा, i का वैल्यू लेगा 1. ठीक है, i का वैल्यू 1 लेगा, फिर वो किधर आएगा, इस बॉडी के अंदर आएगा. ये उसका बॉडी होता है, बॉडी में i जहां जहां पे भी आई है वहां पे वैल्यू क्या रखेगा, 1 रखेगा. सो 3 रेज टू 1 हो जाएगा, माइनस 2 रेज टू 1 हो जाएगा. आई नो दैट इसका आंसर कितना आता है, 1. तो ये 1 किस पे स्टोर हुआ है बच्चा, p ऑफ 1 में स्टोर हुआ है. तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या कमांड दिया, डिस्प्ले, डिस्प्ले p ऑफ 1. तो p ऑफ 1 को वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इसका वैल्यू कितना है, 1. तो डोंट यू थिंक सो आपका आउटपुट जो था, आपका जो आउटपुट था उधर देखो 1 डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, हो रहा है मैम. सिमिलरली. हाँ, फिर क्या होगा, क्या हमारा बॉडी एंड हो जाएगा, अभी इधर एंड हो जाएगा, नहीं, बिकॉज हमारा जो आई है दैट इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2. सो 1 के लिए 2. एग्जीक्यूट हो गया, नाउ विल एग्जीक्यूट इट फॉर 2. सो नाउ आई विल टेक आई का वैल्यू एज 2. सो फॉर आई इक्वल्स टू 2 अगेन इट विल कम इनटू द बॉडी. What is it? Wherever there is I, it will take 2. So p of 2 is equals to 3 raised to 2 minus 2 raised to 2, which will be 5. So 5 किस पे स्टोर हुआ है अभी, p of 2 में. और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसे डिस्प्ले करेंगे. तो डिस्प्ले p of 2. So p of 2 का वैल्यू डिस्प्ले हुआ कि नहीं, देखो इधर 5 डिस्प्ले हुआ है ना. So that is p of 1 and p of 2. I hope Nitesh that doubt is clear of yours, that p of 1 and p मैम of 2 अगर क्या मैं है. 1:10 लेते तो फॉर लूप का वैल्यू डिस्प्ले में क्या लिखते मैम, फॉर लूप का वैल्यू 1:10 लेते तो, फॉर लूप का वैल्यू 1:10 लेते तो. हाँ, यस. तो कोई तो बात नहीं, आपने क्या वो होता है? आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपने 1 का वैल्यू 2 1 to 2 रखा है या 1 to 10. वो साइलैब का हेडेक है. अगर चलो इधर 1 to 10 रख देते हैं हम, 1 to 10 रख देते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. वेयर इज माय आउटपुट, कैन यू सी. So ये for n equals to 1, for I equals to 2, for I equals to 3, I equals to 4, I equals to 5, I equals to 6, I equals to 7, I equals to 8. देखो कितने 9 and 10. तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सारे i का वैल्यू ले रहा है और क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है. तो पहले i का वैल्यू लिया 1, इधर पुट किया वैल्यूज, उसको स्टोर किया p of 1 में, फिर क्या हो रहा है, वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है.
So it will go on doing this till the value of I becomes 10. Okay. I hope that doubt is clear, Nitesh. Yes, ma'am. ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? No, ma'am. Okay. So why am I writing a P of 1 equals to U of 1? Because I have been asked to take only 2 values, just to understand कि for loop काम कैसे कर रहा है. So with this, our practical 1 gets over. Did you all understand practical 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you all also perform simultaneously, students. Okay, because ये सिर्फ देख के नहीं समझ में आता है. Because when you will type, when you will do by yourself, then only you'll come to know कि way of making mistakes. You know, typing mistake हो जाता है. Sometimes you get an error. Okay, so वो errors कैसे rectify करने हैं वो तभी आएगा जब आप खुद से perform करोगे. Okay, so now we'll start with first, second practical functions and algorithm. This first question we'll do at the end. Now we'll by that time we'll perform the remaining practicals. Okay, so practical 2 है हमारा, so I'll just write on the index part of it. Okay, so इसके अंदर कितने practicals I'll just see. So practical 2 का title क्या था? Functions and algorithm. Okay, so this is the title of our second practical. उसके अंदर कितने sub practicals? I'll just check that one. This is 2.1 and 2.2. If I'm not wrong, then there is 4 practical. There are 4 practicals. One, cardinal. The first one was recursively defined function. Then cardinality, then polynomial evaluation. The last is greatest common divisor. So I'll just write on over here. I'm writing it purposely, students, so that कि आपका index part आपको clear रहे कि आपको index में लिखना क्या है, and no one is going to ask me at the end कि मैम index का dates बताओ. So I'm just showing you each and everything. You all have to start writing your journals properly. So functions and algorithm. First one क्या था? Recursively defined function. So this we are going to do at the end. Recursively defined function. Second क्या था? What was? That is cardinality. Cardinality मतलब क्या होता है बच्चों? What is cardinality? Number of elements in the set. Yes, number of elements present in the set. Okay, so कैसे count करने का? कैसे count करने का कि how many elements are present in the set? If I give you, Scilab कैसे count करेगा उसे? How will Scilab calculate कि how many elements are present in the set? N of A. Length. N of A. Length command. Very good. Who answered this length? Raj, is this you? Yes. Very good, Raj. Just now I explained कि कितने elements से ये count करने का काम कौन करेगा? Length command करेगा Scilab में. So see the code. Very easy it is. So we are starting with first recursively defined function हम will do at the end. Cardinality हम second practical start करें. Cardinality. What is the question? Write a Scilab code to find cardinality of set A. तो A की cardinality कितनी है बताओ जरा? What is the cardinality of set A? 3. बहुत difficult है आंसर करना. हाँ 3 है. Okay. And set B की cardinality कितनी है? 5. 5. Okay, तो अभी Scilab को कैसे बताने का? Scilab में कैसे लिखने का अभी? Let us see that. Okay, set A क्या था हमारा? Set A was तो 1 2 3 पहले तो set define कर देने का ना. कैसे define करते हैं? तो we take the help of array. So one, either you can put space or you can put comma, students. Both will do. So मैंने set A define कर दिया, then bracket close. Then मुझे क्या करना है? इसकी cardinality निकालनी. तो cardinality मतलब क्या होता है कि कितने एलिमेंट सेट A के अंदर प्रेजेंट है. तो ये कमांड ये काम कौन करता है? क्या बताया था मैंने? It is done by length command. No? Length. Oh, spelling wrong है. So length command देने का. किसका length calculate करना? A का. So A का length calculate होगा. Suppose इसको मैं store कर दे रही हूँ. कोई भी variable ले सकते हो. Suppose इसको store किया मैंने small a में. चलेगा ना? Small a ले लो या फिर कोई और variable ले लो. क्या लो variable? K ले लेते हैं. Yes. ठीक है. Length A एक लाइन में मैंने क्या डिफाइन किया? Set A डिफाइन किया. नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रही हूँ length. Length क्या कमांड करेगा?
लेंथ क्या काम करेगा कि कितना उस ए का जो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने क्या लेंथ है उसका वो काउंट करेगा, देन कैलकुलेट हो जाएगा, बट डिस्प्ले होगा क्या वैल्यू, विल इट गेट डिस्प्ले? नो मैम। नो, अनलेस यू गिव कमांड डिस। Dis. किसका वैल्यू डिस्प्ले करना है हमें, किसका वैल्यू डिस्प्ले करना है, कौन सी वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है? ए। हमने जो आंसर का स्टोर किया, नो, ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है वो डिस्प्ले करनी है ना। यस मैम, यस। तो कार्डिनलिटी का वैल्यू हमने किसमें स्टोर किया है, के में किसमें के स्टोर किया वैल्यू? के के में K स्टोर में किया, तो के को डिस्प्ले करेंगे ना, सो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले के। सो व्हाट इज दिस के? इट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, नो मैम। कोई कंफ्यूजन है तो No. सेट ए डिफाइन किया 1 2 3, देन हमने इसकी कार्डिनलिटी कैलकुलेट करने के लिए लेंथ कमांड दिया, उसका वैल्यू स्टोर किया के में। अभी हम नेक्स्ट टाइम हम के को डिस्प्ले करेंगे, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। Let's see what output I'm getting. Can you see what is the output? The cardinality of set A is what? 3. Did you see that? Yes ma'am. The cardinality of set A is 3. Okay. Similarly, आपके पास एक और सेट था B, नो? B भी था आपके पास, क्या था? 1 2 3 4 5. अभी मैंने कॉमा नहीं डाला है, ठीक है, कॉमा नहीं डाला, सिर्फ स्पेस डाला है। नेक्स्ट टाइम ले लेती हूँ L is equals to लेंथ ऑफ क्या लिखूं मैं? बी। B. नेक्स्ट टाइम हमें डिस्प्ले भी कमांड देना पड़ेगा ना, अदरवाइज वैल्यू विल नॉट गेट डिस्प्ले। डिस्प्ले किसका वैल्यू? L का। व्हाट इज दिस L स्टैंड्स फॉर? लेंथ। बी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट B, right? No? चलो let us display this value. Can you see the cardinality of the set B कितना आ गया? 5 आ गया। Is this practical difficult or you getting it students? Because ये मेरा viva question होता है and most of you do not answer. कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कैलकुलेट करने के लिए साइलैब में क्या कमांड देना होता है? what is that command which you have to give for length command? ओके, तो आप सेट ए कैसे डिफाइन करते हो? यू यूज स्क्वायर ब्रैकेट, बेसिकली इट इज एन एरे। एरे का लेंथ कितना है वो कमांड। अभी एरे क्या होता है दैट यू विल अंडरस्टैंड इन इम्परेटिव प्रोग्रामिंग जब आपका वो टॉपिक आएगा। सो ए में कितने एलिमेंट्स है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द कमांड लेंथ। ओके, सो इसको एक और तरीका भी है, क्या कर सकते हो आप? व्हाट दे हैव यूज्ड, नो, मैं आपको बताती हूँ। सेट ए के एलिमेंट्स कितने थे, मैं आपको कोड ही दिखा देती 3 हूँ। elements. सो हाँ, सेट ए के एलिमेंट्स थे 3, ठीक है, तो उन 3 एलिमेंट्स को किसमें स्टोर किया उसने? एक्स, वाई और जेड में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 आप क्या लिख सकते हो? एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको उसमें किसमें स्टोर ए में डिस्प्ले क्या हम क्या कर रहे हैं, लेंथ कमांड दे रहे हैं, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अरे ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हाँ, ऐसा क्यों लिखा, 2 बार क्यों लिखा हुआ है? तो आई एक्सप्लेन स्टूडेंट्स की इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, 2 चीज को कंबाइन कर देते हैं ना एक ही डिस्प्ले में। व्हाट दे हैव डन, उन्होंने ये चीज निकाल दिया, ठीक है, दे रिमूव दिस थिंग, एक सेकंड, दे रिमूव दिस थिंग एंड उसको 2 बार लिख रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस स्टूडेंट्स, हाँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। चलेगा ना ऐसे भी? तो ये 2 डिस्प्ले कमांड दिया, तो पहले वाले डिस्प्ले में जो भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, द सेम थिंग विल गेट डिस्प्लेड, एंड सेकंड लाइन में आपका क्या है, के है, तो वैल्यू विल गेट डिस्प्लेड। देखो आपको आंसर आ रहा है क्या अभी? वेयर इज माय आउटपुट बेटो? यस, स्टिल यू आर गेटिंग द आउटपुट, है ना? तो either you write in 1 line or you write in 2 lines, it doesn't matter, okay, you are going to get the same answer. Okay, so I hope this code is understood to all of you. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so इन्होंने 1 2 3 लिखने के बजाय x y z लिखा है, so that is also okay. Okay, so yeah, then next time देखो b लिखा, 1 2 3 5 7 9 लिखा, कार्डिनलिटी लिखा, and then लेंथ कमांड देके उसकी कार्डिनलिटी कैलकुलेट डिस्प्ले किया, that's it. इसके आगे के प्रैक्टिकल्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।